Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. Uh, Today is the 14th session of Communication Skills and Learning class, and we are about to start non-verbal communication today, as it was discussed in the at the beginning of this course. But before that, let's have a quick recap of what we have learned earlier. Earlier, we have understood the difference between in time and on time. In time is when something is on a proper schedule, and on time is when something is not too late to be a fail. And then we understood the difference between continuously and continually. So today we are going to repeat this continuously and continually because there were some mistakes in the previous session, which I told you that uh, I'll fix those mistakes and I will let you know in this session. And then we understood the phrase "my bad." So when you use "my bad," it is when uh, you use "my bad" when you want to apologize, but you do not want to say sorry. So instead of saying sorry, you say "my bad." Okay. As an example, it's my bad that I lost my car keys. Then we understood the use of phrase "take the biscuit." So take the biscuit. You use this phrase when you do something surprising, annoying, or you do something silly. As an example, it really takes the biscuit to put the pool in the living area. So it's a stupid thing to put a pool in the living area. So we'll use the phrase take the biscuit in order to explain it to the guy who has done that silly thing. And we understood the difference between a biscuit and a cookie. It depends if something is if a biscuit is cooked. See, biscuit is something which is cooked from both sides, whereas cookie is fluffy and it is baked from only one side. It's like a small cake. And we also understood that the word cookie came from the word cookie, and biscuit came from the Latin word bis and coccere. And then we had word root analysis where we understood these four words: biblio, bio, kept or sept, and cardio. And then we understood what is simple past tense, simple present tense, and simple future tense. Let's start with the session today. Verbal skills, as I told you that I'll fix that the issue that we were having earlier, continuously and continually. So both of these almost mean the same, but there is a minor difference, and these both words are adverbs. They are confusing because their spelling is somewhat similar to each other, but they are very different in meaning from each other. So continuously is when you does not stop, when you do something which does not stop or end. It's like and continually is when you do something or when something is being done repeatedly over a period of time. As an example, um, continuously, he spoke continuously for 15 minutes. So there is a guy who is speaking from the past 15 minutes non-stop. Then we'll use the word continuously. Or the metro runs continuously until midnight. So metro आधी रात तक बराबर चलती रहती है. So here जो चीज रुकती नहीं है और बार बार होती रहती है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअसली. लेकिन कंटिन्यूअली एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बार बार करें और हम उसमें रुक भी सकते हैं. जैसे आई कंटिन्यूअली टेल माई सन आई लव हिम. मैं बार बार अपने बेटे को बोलता हूँ कि मैं उसको चाहता हूँ. या फिर दे कंटिन्यूअली आर्ग्यू फॉल आउट एंड फॉल इन अगेन. वो बार बार बहस करते हैं, एक दूसरे के साथ नाराज हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं. So is it clear to everyone or there is any doubt? Okay, let's move to the next part. Okay, there are a lot. Yeah, those guys who are joining, please unmute your mic. Make sure you are on mute. Samiva, please keep your mic on mute. Okay, so coming to the next session of verbal skills, today we are going to understand the difference between sensible and sensitive. There is someone who has turned on his mic. See.
Yes, guys, please turn off your mic. It is interrupting everyone. Okay, what is sensible and what is sensitive? In order to understand the difference between sensitive and sensible, we must understand what are these words. Okay, so these two words are actually adjectives and ये अक्सर कॉपुला या फिर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और there are some verbs which these are used along with the words be, feel, जैसे feel sensitive या feel sensible, appear sensible, look sensible, around. Just give me 1 second. Let me add everybody. Okay, so smell sensitive, smell sensible, or taste sensitive, yeah, become sensitive, become sensible. So those words which are used along with the linking words are called copula in English, and these words are actually adjectives. So sensible और sensitive में माइनर सा फर्क है और ये पूरा मीनिंग चेंज कर देता है सेंटेंस का. जैसे शी इज वेरी सेंसिबल सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन हर. जस्ट गिव मी 1 second because someone is really making lot of noise. Tamia, please turn off your mic here. Let me do it. Okay, so she is very sensible. So what is sensible? And if I say he has become more sensitive as he has got more old, तो पहला तो इसमें ये है कि सेंसिबल को हम सेंसिबल को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा और सेंसिटिव को हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा. बट विद ए डीपर मीनिंग हम इन दोनों वर्ड्स को एज ए कॉपुला और एज ए लिंकिंग वर्ब यूज कर सकते हैं. और जिन वर्ड्स के साथ हम इसको यूज करते हैं वो बी, फील, अपीयर, सीम, लुक सेंसिटिव, लुक सेंसिबल, या साउंड सेंसिटिव, साउंड सेंसिबल, स्मेल सेंसिटिव, स्मेल सेंसिबल, इस तरह के वर्ड्स के साथ हम इनको यूज करते हैं. अब जो पहला वर्ड है वो है शी इज वेरी सेंसिबल सो यू कैन रिलाई ऑन हर. वो एक लड़की है जो बहुत सेंसिबल है. मुझे एक कोई बंदा एडवाइस दे रहा है कि ये लड़की बहुत सेंसिबल है, तुम इस पर रिलाई कर सकते हो, तुम इस पर अपना एतमाद रख सकते हो. और दूसरा है ही हैज बिकम मोर सेंसिटिव एज ही हैज गॉट मोर ओल्ड. ये वो ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है जैसे जैसे ये ओल्ड होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. तो हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है. सेंसिबल इज इट मीन्स यू हैव गुड जजमेंट और यू आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट समथिंग. देखो सेंसिबल का मतलब है कि आपका देखने का नजरिया बहुत बेहतरीन है या फिर आपको आप बहुत प्रैक्टिकल हो किसी चीज के लिए. जबकि सेंसिटिव जो है, सेंसिटिव इज मोर रिलेटेड टू योर फीलिंग्स और द वे यू थिंक. सो सेंसिटिव का मीनिंग आता है यू थिंक अबाउट हाउ अदर्स फील और योर फीलिंग्स आर वेरी इजिली अपसेट. सेंसिटिव कौन होता है? सेंसिटिव वो आदमी होता है जो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है कॉमन लैंग्वेज में. और इंग्लिश में भी इसका यही मीनिंग है कि सेंसिटिव एक्चुअली उस सेंसिटिव कहते हैं कि आप ये चीज के बारे में सोचते हो कि बाकी क्या सोचेंगे, या तो ये हो गया सेंसिटिव, या फिर आपकी फीलिंग बहुत जल्दी अपसेट हो जाए या आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाओ, वो सेंसिटिव होता है. इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. द मोस्ट सेंसिबल थिंग्स इज टू इग्नोर व्हाट पीपल से एंड फोकस ऑन फैक्ट्स. तो सबसे अच्छी सेंसिबल बात क्या है, सबसे अच्छी प्रैक्टिकल बात क्या है कि आप इस चीज को भूल जाओ कि बाकी क्या सोच रहे हैं और फैक्ट्स, सच्चाई पर फोकस करो. And the second example for sensitive is be sensitive to people's feeling and they might agree with you. कि आप लोगों की फीलिंग्स की तरफ सेंसिटिव हो जाओ. आप समझो कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, और वो आपके साथ एग्री करना शुरू हो जाएंगे, वो आपके साथ हामी भरना शुरू हो जाएंगे. So is it clear to everyone what is sensible and what is sensitive and where to use these words? Or anyone has any question? No one has any question? Okay, let's move to the next section of verbal skills. So today we are also going to understand what is the difference between ing and to, but we have to use try along with it. देखो होता क्या है, हम कई सारे सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिसमें हम ट्राई के साथ या तो ing लगाते हैं या फिर ट्राई के साथ एक टू लगाकर फिर वर्ब लगाते हैं. मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे आई ट्राइड स्टडिंग फॉर द होल नाइट, मैंने पूरी रात पढ़ने की कोशिश की. और आई ट्राई टू स्टडी फॉर द होल नाइट. तो
मैंने पूरी रात पढ़ने की कोशिश की। अब इनका ट्रांसलेशन सेम है बट इनका कॉन्टेक्स्ट और इनका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आई ट्राइड बेकिंग ए केक। देखो, बेक जो है ये एक वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी लगा है और इसके साथ हम वर्ड यूज कर रहे हैं ट्राई। और सेकंड सेंटेंस है आई ट्राइड टू बेक ए केक। बेक इज द वर्ब, वर्ब के साथ टू लगाया है और साथ ट्राई लगा है। और ये ट्राई के केस में स्पेशली इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ट्राई एक ऐसा वर्ड है जो पूरा मीनिंग बदल देता है सेंटेंस का। ये दोनों दिखने में एक जैसे सेंटेंसेस हैं, इनकी ट्रांसलेशन लगभग सेम है मगर इनका कॉन्टेक्स्ट और इनका सेंस बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ऑडियो ऑन करो। सबा आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आई थिंक आप ज्वाइन वाया डिवाइस ऑडियो बटन पे क्लिक करो। बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. I think Sabha is the only one who is facing problems with audio. Just give me 1 second. Done. So अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इसको हम देखते हैं कि ये ट्राइड बेकिंग और ट्राइड टू बेक, इसमें फर्क क्या है। देखो, जैसे मैंने कहा इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और सेंस भी बिल्कुल बदल जाएगी। देखो, ट्राई के साथ अगर हम एक वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो कहाँ होगा? वो है कि जब आप एक नई चीज एक्सपीरियंस करते हो जिसको आपने पहले कभी ना किया हो। इट इज यूज टू से दैट यू अटेम्प्टेड समथिंग, ए न्यू एक्सपीरियंस समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। तो आईएनजी किस केस में यूज करना है आपने ट्राई के साथ? उस केस में जिसमें वो काम आपने पहले कभी ना किया हो, वो काम आपके लिए बिल्कुल नया हो और उसका आपको कोई एक्सपीरियंस भी ना हो। जबकि जो ट्राइड के साथ टू लगाना है या ट्राई के साथ टू लगाकर फिर वर्ब को यूज करना है, ये आपने उस केस में यूज करना है जिस काम का आपको एक्सपीरियंस तो हो मगर वो काम आपका फेल हो चुका हो। जैसे इट इज यूज टू से दैट ए टास्क इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कंप्लीट। कोई काम जो मुश्किल है करने में एंड यू हैव फेल्ड टू परफॉर्म द टास्क, या फिर आप वो काम करने में फेल हो चुके हो। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई ट्राइड प्रिपेयरिंग डिनर टुनाइट। अब ये जो वर्ड है, सेंटेंस है ना, आई ट्राइड प्रिपेयरिंग डिनर टुनाइट, इसका मतलब है कि मैंने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया है और आज रात में खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई ट्राइड प्रिपेयरिंग डिनर टुनाइट। तो ये खाना बनाना मेरे लिए एक नया काम है बिल्कुल, जिसको मैंने पहले कभी नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर के साथ आईएनजी लगाऊंगा। लेकिन अगर खाना बनाना मेरे को ऑलरेडी आता हो और मुझसे खाना बनाते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मैं बोलूंगा आई ट्राई टू प्रिपेयर डिनर एंड द वेजिटेबल इज बर्न। तो मैंने आज खाना बनाने की कोशिश की और सब्जी जल गई। सो ट्राइड टू वहां यूज होएगा जो काम आपने पहले किया हो और आप उस काम को, वो काम आपके लिए मुश्किल हो और आप उसमें फेल हो चुके हो। So everyone has got an understanding where to use try plus ing and try plus to. Do you have any questions? Okay, let's move to the next section of our daily lessons. So look at this picture and try to understand what is going on. एक आदमी है जो बैटरी लो होने पे परेशान हो गया है। तो ये किसकी बैटरी लो होने पे परेशान हो जाएगा? ये आजकल हम सबके साथ होता है। This guy is very Mobile. worried about some device battery getting low. कौन बताएगा? Mobile's battery. Exactly. So this guy is very worried that the mobile battery is extremely low and he is unable to use mobile. तो एक ऐसा आदमी जो डरता है इस चीज से कि उसका मोबाइल खो गया और अब वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता या उसके मोबाइल को कुछ हो गया वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे नोमोफोबिक। और इस डर को हम बोलते हैं नोमोफोबिया। सो नोमोफोबिया इज द फियर ऑफ नॉट हैविंग और नॉट बीइंग एबल टू यूज योर मोबाइल फोन। कि आपको इस चीज का डर है कि आपके पास आपका फोन नहीं है या फिर आप अपने फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये आजकल हम सबके साथ होता है। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। माय ब्रदर हैज डेफिनेटली गॉट नोमोफोबिया। ही नेवर स्विचेस ऑफ हिज फोन इवन व्हेन ही इज इन बेड टू स्लीप।
मेरे भाई को डेफिनेटली नोमोफोबिया हो चुका है, वो कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता, और जब वो बिस्तर में सोने के लिए जाता है वो तब भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता। सो नोमोफोबिया यहाँ से दिखता है कि एक इंसान को नोमोफोबिया है या नहीं है, एक ऐसा डर कि वो अपना मोबाइल फोन यूज नहीं कर सके। एंड ये 21st सेंचुरी का वर्ड है। ये जो लास्ट 2 डिकेड्स हैं उसमें ये वर्ड इन्वेंट हुआ है, बिकॉज मोबाइल फोन्स इन 2 डिकेड्स में बहुत पॉपुलर हो गए, और इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ये डर आ गया सब लोगों में। माई फोन इज बीइंग फिक्स्ड एंड आई एम फीलिंग वरिड। मेरा फोन ठीक हो रहा है और मेरे को अजीब सा महसूस हो रहा है, बिकॉज मेरे को लगता है मुझे नोमोफोबिया हो गया। आई हैव गॉट नोमोफोबिया। अब मैं अपना फोन यूज नहीं कर सकता हूँ जब तक वो ठीक नहीं होएगा। तो ये जो फीलिंग है डर की, इसको मैं नोमोफोबिया कहता हूँ। इसको इंग्लिश में नोमोफोबिया कहा जाता है। और जैसे टू ऑल नोमोफोब्स, सॉरी यहाँ होमोफोब्स आ गया, सो इट वाज अ टाइपो। टू ऑल नोमोफोब्स, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन एंड गेट ए लाइफ। वो सब लोग जिनको अपना फोन खोने का या फोन ना इस्तेमाल करने का डर है, प्लीज अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड पर रखो और जिंदगी जियो थोड़ी। तो इज इट क्लियर सबको कि व्हाट इज नोमोफोबिया? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। लाइक राइडिंग ए बाइक। देखो ये जो फ्रेज है ना, लाइक राइडिंग ए बाइक, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्यों है? बड़ी बात ये है, ये फ्रेज उस काम के लिए यूज होता है जो काम आपने एक बार सीख लिया और फिर आप कभी उसको भूल नहीं सकते। और हम बाइक का इसमें एग्जांपल क्यों रखते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसे काम के लिए जिसको आप एक बार कर लो और फिर कभी ना भूलो, या एक बार सीख लो और फिर कभी ना बोलो, उस केस में बाइक का एग्जांपल या बाइक वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हमारे चाइल्डहुड में सबसे पहले हमें साइकिल या बाइक चलाना सिखाया जाता है। और एक बार हम साइकिल या बाइक चलाना सीख ले, फिर हम उसको पूरी उम्र नहीं भूलते, चाहे हम उसको ना चलाएं। इसका मीनिंग देखते हैं इस फ्रेज का। इट मींस वंस यू लर्न हाउ टू डू समथिंग यू नेवर फॉरगेट इट। कि एक बार आपने कोई चीज सीखी और फिर आप उसको कभी नहीं भूलते। तो उस केस में हम ये फ्रेज यूज करते हैं, लाइक राइडिंग ए बाइक। जैसे मैं JNK से हूँ और मैं पहाड़ों पे चढ़ना जानता हूँ, तो एक वर्ड है, वो इसमें एक एग्जांपल है, माउंटेन क्लाइंबिंग इज लाइक राइडिंग ए बाइक टू मी। पहाड़ चढ़ना मेरे लिए ऐसे जैसे बाइक चलाना। मैं हमेशा इसको आसानी से करता हूँ। आई कैन ऑलवेज डू इट एट ईज। या आई हैव नॉट कुक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर आई केम बैक होम। मैंने बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं बनाया जब से मैं घर आया हूँ, बट आई विल श्योरली प्रिपेयर डिनर टुनाइट। इट्स लाइक राइडिंग ए बाइक। लेकिन आज रात में पक्का खाना बनाऊंगा क्योंकि मैंने ये एक बार सीखी और मुझे ये कभी भूलता नहीं। और इसकी एक और एग्जांपल है, एवरीथिंग विल बी लाइक राइडिंग ए बाइक वंस यू लर्न इट बाय हार्ट। अगर आप किसी चीज को दिल से सीख लो तो वो बाइक चलाने जैसी आसान है आपके लिए। Is there anyone who has any doubt in this phrase? Okay, let's move to the next section. So word root analysis and pronunciations. इसमें हम आज पढ़ेंगे CARN या CARNI। दूसरा वर्ड हम आज सीखेंगे CATA, कटा। तीसरा है कॉस्ट और कास्ट। ओके, CAUST कॉस्ट और CAUT कॉट। और फोर्थ है सीड, सीड या सेस। CEDE भी सीड होता है, CEED भी सीड होता है, और CESS इज सेस। तो पहला वर्ड हम देखते हैं, कार्न या कार्नी। तो CARNI, कार्नी। कार्नी जो वर्ड है या कार्न जो वर्ड है, ये फ्लैश और मीट से रिलेटेड है, जैसे कार्निवोरियस। सो कार्निवोरस इज समथिंग हु ईट्स फ्लैश और हु ईट्स मीट। वैसे ही दूसरा वर्ड है कार्नल, CARNAL, कार्नल। देखो आर से पहले जब भी एक वॉल लगा होगा ना, AEIOU, इनके आगे अगर आर लगा होगा तो आर की साउंड को बिल्कुल बारीक खींचना है, कार्नल। हम कार्नल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्नल। सो कार्नल इज प्रिटेंडिंग टू द बॉडी, pertaining टू द बॉडी और फ्लैश के, बॉडी से या गोश्त से रिलेटेड कोई चीज, उसको हम कार्नल बोलेंगे। और फिर इनकारनेट, इनकारनेट होता है किसी चीज को एक हुलिया देना, जिस्म का हुलिया देना, बॉडीली फॉर्म, गिविंग ए बॉडीली फॉर्म। क्लियर? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड इज CATA। सो CATA
हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग्स. पहला है डाउन, दूसरा है अगेंस्ट, तीसरा है कंप्लीटली, इंटेंस और अकॉर्डिंग टू. जैसे फर्स्ट वर्ड है, किसी को डाउट है? Is there anyone who wants to ask question? Or okay, I shall proceed. So the first word is cataclysm. So cataclysm क्या होता है? Cataclysm एक ऐसा डिजास्टर होता है जो फ्लड से रिलेटेड होता है, बाढ़ से रिलेटेड, आपदा, उसको हम बोलते हैं कैटेक्लिज्म. देन कैटलॉग, कैटलॉग इज एक कंप्लीट लिस्टिंग, एक कंप्लीट लिस्ट चीजों की, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग. एंड द थर्ड वर्ड इज कैटास्ट्रोफी. सो कैटास्ट्रोफी इज कोई ऐसी चीज जो बद से बदतर हो जाए, टर्निंग फॉर द वर्स्ट और इज सब्सटेंशियल डिजास्टर. मतलब पहले तो कम डैमेज हुआ किसी डिजास्टर में और अब और भी बदतर हो गया. सो विल से इट्स अ कैटास्ट्रोफी. क्लियर है सबको? Okay, let's go to the third is cost और caught. तो cost और caught का मतलब होता है to burn. तो पहला वर्ड है cauterize. अब देखो cauterize ना दो अलग अलग वर्ड्स हैं. cauterize आप ही का देख मीनिंग सकते भी अलग है लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम है. हैं। यहाँ पर जो वर्ड है cauterize वो है to burn with a hot instrument. जैसे आप कपड़ों को प्रेस कर रहे हो, आयरन कर रहे हो और गलती से आपका हाथ उस आयरन को लग गया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि माई हैंड इज बर्न with hot iron. या आपने someone has turned on his mic, so the let me turn her off. Okay, so आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा हाथ उस I have burnt my hand with a hot iron. या फिर आप किचन में काम कर रहे हो, आपने गर्म बर्तन को हाथ लगा लिया, या ओके, सो आप किचन में काम कर रहे हो और आपने गर्म बर्तन को गलती से हाथ लगा लिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि माई हैंड इज बर्न विद बिकॉज ऑफ अ हॉट यूटेंसिल. तो आप क्या बोलोगे इसकी जगह? माई हैंड इज कॉटराइज्ड. तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपने किसी गर्म चीज को हाथ गलती से लगा लिया और आपका हाथ जल गया उससे. और दूसरा जो वर्ड है कॉटराइज, जिसकी स्पेलिंग सेम है मगर मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, वो फैब्रिक है. जो कॉटराइज फैब्रिक हम पहनते हैं, कॉटराइज का मतलब होता है बीटन और वुवन, एक ऐसा कपड़ा जो पीट पीट कर बनाया गया हो. और दूसरा वर्ड है कॉस्टिक. सो कॉस्टिक इज कैपेबल ऑफ बर्निंग और ईटिंग अवे. किसी चीज को खाकर खत्म करना या जलाकर खत्म करना इज कॉस्टिक. जैसे एसिड्स जो होते हैं वो चीजों को जलाते हैं. सो हम बोलेंगे एसिड्स आर कॉस्टिक. ओके. द थर्ड इज हॉलोकॉस्ट. सो हॉलोकॉस्ट इज टोटल डिवास्टेशन स्पेशली बाय फायर. अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार फायर से ही बर्बादी हो. बर्बादी, पूरी तरह की बर्बादी को हम हॉलोकास्ट कहते हैं. जैसे जूस का हॉलोकास्ट है. उसके अलावा 1947 में इंडिया में हॉलोकास्ट हुआ, पाकिस्तान में हॉलोकास्ट हुआ कि काफी लोगों की वफात हुई, काफी लोगों की कत्लो गारत हुई एक बड़े लार्ज स्केल पे, तो हम उसको हॉलोकास्ट कहते हैं. और हम उसको कैटास्ट्रोफी भी कहते हैं, मैन मेड कैटास्ट्रोफी. सबको क्लियर है? Okay, let's go to the next सेक्शन विच इज सीड और सेस. देखो अभी सीड और सेस जो है ना, इसका मीनिंग होता है गो या यील्ड. तो एक्सीड, EXCEED, सो जिसमें भी सीड लगा होगा उसका मीनिंग होता है या जाना या यील्ड करना. मेरे को पता नहीं यील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट आई नो ये व्हाट इज यील्ड. यील्ड होता है कि इस्तेमाल करके पूरा बेनिफिट लेना. अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो देखो एक्सीड का क्या मीनिंग है? एक्सीड है कि आप अपनी लिमिट्स के पार चले गए. सो यू गो बियॉन्ड सम योर लिमिट्स इज एक्सीड. देन रिसीड, रिसीड इज टू गो बैक, कि जहां से आए हो वहां पर वापस चले जाना इज रिसीड. यार जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी म्यूट एवरीवनस माइक. Samya, I am unable to mute your mic here. Please mute your mic. तो रिसीड इज टू गो बैक, आप जहां से आए हो वहां से वापस चल जाओ. और रिसीड से मिलता मिलता जुलता वर्ड है एक रिवर्ट. रिवर्ट का मीनिंग होता है वापस आना, रिसीड का मतलब होता है वापस जाना. एंड एक्सेसिबल, एक्सेसिबल इज
विच इज इजीली एंटर्ड या अप्रोच्ड या obtained। जैसे मेरा फोन को अगर मैं पासवर्ड लगाऊं तो इट विल बिकम एक्सेसिबल, या मैं अपने घर का ताला खोल दूंगा तो आई एम एक्सेसिंग माई होम, या माई होम इज एक्सेसिबल आफ्टर अनलॉकिंग द मेन डोर। मेन दरवाजा खोल दो तो मेरे घर के अंदर आप आ सकते हो, दैट इज एक्सेसिबल। सबको क्लियर है? और एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स गो टू द ग्रामर सेक्शन नाउ। ग्रामर सेक्शन में आज हम देखेंगे टेंसेस का नेक्स्ट पार्ट, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जो, या फिर एक ऐसा वर्ब है या ऐसा वर्ड है जो आपको एक ऐसे काम के बारे में बताएगा जो इस वक्त चल रहा हो, जिस वक्त में आप जी रहे हैं इस वक्त। सो राइट एट द मोमेंट कोई काम अगर चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर इस वक्त से पहले कोई काम हो चुका है या फिर कोई काम चल रहा था, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। और इस वक्त के बाद जो आने वाला वक्त है, फ्यूचर में अगर कोई काम कंटिन्यूअली चलेगा, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिनोट समथिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जो काम अभी चल रहा है। Past continuous denotes something which was going on at some point of time in the past, जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था। जैसे मैं एक मशीन लाया हूँ जो, या फिर मैंने आज सुबह मोटर ऑन की थी और मोटर ने पानी पंप किया आधे घंटे के लिए मेरी टंकी में, सो वो सुबह मैंने किया था, तो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। तो मोटर वाज रनिंग इन द मॉर्निंग, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस इज मैं कल मोटर लगाऊंगा और मेरे घर में पानी आएगा उसकी वजह से, और वो आधे घंटे के लिए चलेगी, सो द मोटर विल रन in the morning tomorrow, that is past continuous. So past continuous denotes some action that will go on, but that will go on in the future, जो future में चले। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल प्रेजेंट की। आई एम डूइंग माई जॉब इन डे शिफ्ट। सो मैं अपना काम डे शिफ्ट में कर रहा हूँ, तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये एक कंटिन्यूअस काम है जो चल रहा है और मैं डे शिफ्ट में कर रहा हूँ। अगर हूँ लग गया तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट का है काम। वैसे ही आई वॉज डूइंग माई जॉब इन द डे शिफ्ट, मैं अपनी नौकरी डे शिफ्ट में कर रहा था। एंड फ्यूचर टेंस में आ जाएगा आई विल बी डूइंग माई जॉब इन द डे शिफ्ट, मैं अपना काम डे शिफ्ट में कर रहा होऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को श्योरिटी नहीं है, अभी मुझे नौकरी नहीं मिली, अभी मेरी शिफ्ट शुरू नहीं हुई, तो मैं अपना काम फ्यूचर में डे शिफ्ट में कर रहा होऊंगा। और वैसे ही एक और एग्जांपल है, आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट एवरी डे फॉर 2 आवर्स। मैं अपने प्रोजेक्ट पे हर रोज 2 घंटे काम करता हूँ, ये प्रेजेंट का काम है। ठीक, वैसे ही आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट एवरी डे फॉर 2 आवर्स, मैं अपने प्रोजेक्ट पे हर रोज 2 घंटे काम करता था। और फ्यूचर में कैसे बोलूंगा कि मैं हर रोज अपने प्रोजेक्ट पे 2 घंटे काम करूंगा। सो दैट विल बी आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट एवरी डे फॉर 2 आवर्स, आई विल बी वर्किंग एवरी डे। तो ये फ्यूचर टेंस है। अब इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, इसके साथ इज एम आर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट, और कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझ आ गया सबको? जैसे आई एम डूइंग माई जॉब इन डे शिफ्ट, सो आई जो है वो सब्जेक्ट है, इज एम आर में से एम लग गया, और डू एक वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगा लो तो वो बन गया डूइंग। माई जॉब ये ऑब्जेक्ट है, और इन डे शिफ्ट ये बता रहा है कि मैंने किस वक्त अपना नौकरी या अपना जॉब कर रहा हूँ। वैसे ही पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आज बहुत सारे लोगों ने माइक ऑन कर रखा है। ओके, तो फ्यूचर टेंस में क्या है, जैसे आई विल बी डूइंग माई जॉब इन द डे शिफ्ट, आई इज द सब्जेक्ट हियर, विल शेल में से विल लग गया और बी लगा लिया, और इसके साथ डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा लिया मैंने, तो वो बन गया डूइंग। सो माई जॉब एक ऑब्जेक्ट है इन द डे शिफ्ट, और वक्त है जो
बता रहा है कि फ्यूचर में है। सो ये सबको क्लियर हुआ? और इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दीज कंटिन्यूअस टेंसेस? सर वर्ब की जो पास्ट टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी? नहीं, वो सॉरी, यहाँ पर सिंपल, तो इसकी टाइटल नहीं चेंज किया। इट्स नॉट सिंपल, इट्स, आई थिंक ये मिस्टेकनली यहाँ पर सिंपल आ गया है। ये सिंपल नहीं, हम कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़ रहे हैं। रुको मैं इसको ठीक करता हूँ। वो सिंपल के केस में होता है, आपकी बात सही है। देखो, दीज आर नॉट, दीज आर, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, समझ गए? ये जी सर। कंटिन्यूअस पास्ट है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर सिंपल प्रेजेंट या ये सिंपल पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म होएगा, बट हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, और मैंने गलती से इस पे सिंपल सिंपल वर्ड यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड कंटिन्यूअस। यार मैं आजकल नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और हो जाता है आजकल। तो ये कंटिन्यूअस फ्यूचर है। सो थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस थिंग। ये सब क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है इसमें और? Okay, so let's go to the non-verbal section today. अब नॉन वर्बल सेक्शन में आज से हमने शुरू किया, जैसे हमने पहले बोला था कि we'll start नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आफ्टर 12th session. So today is the 14th session. So we have started non-verbal communication and we are not going for the interview section today. Interview section हम अब एक दो दिन के बाद, एक दो सेशंस के बाद करेंगे। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे चार तरह का हमने कम्युनिकेशन शुरू में पढ़ा था, उसमें से एक एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हम जिसमें हम लोग वर्ड्स, रिटन वर्ड्स या रिटन लैंग्वेज या स्पोकन वर्ड्स या स्पोकन लैंग्वेज यूज नहीं करते। ठीक है? इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, ये चीजों से या आप इशारों से जब किसी को कुछ समझाते हो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और इसमें आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिखाते किसी को, जैसा हमने देखा था विजुअल कम्युनिकेशन के केस में होता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? ए टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन वेयर यू डू नॉट यूज स्पोकन वर्ड्स। एक ऐसी बातचीत जिसमें आप मुंह से बोले हुए वर्ड्स यूज नहीं करते, रिटन लैंग्वेज यूज नहीं करते, या पिक्चर्स भी यूज नहीं करते। तो आप यूज क्या करते हो? आप इमोशंस, गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस यूज करते हो कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने के लिए आप सिर्फ इमोशंस, गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस यूज करते हो। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है सबको? किसी को पूछना है इसमें कुछ कि ये कहाँ से आ गया? अभी तक तो हम सब रिटन में या वर्बल इंटरव्यू स्किल्स पढ़ रहे थे, ये अचानक से क्या हो गया कि अब हम वर्ड्स यूज नहीं करेंगे? बताओ। ओके, सो इसके ना 7 मेजर टाइप्स हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर मेजोरिटेरली इसके 7 मेजर टाइप्स हैं, और हम पहले उन 7 टाइप्स को पढ़ेंगे 7 अलग अलग सेशंस में, और फिर उसके बाद हम जो इसके बचे कुछ टाइप्स हैं, क्योंकि वो मिक्सड अप हैं, उनको हम रैंडमली बाद में पढ़ लेंगे। मगर हम पहले 7 टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, मेजर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसको पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट टाइप है फेशियल एक्सप्रेशंस। सबको मालूम है फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? आपके चेहरे के भाव, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस। तो दूसरा है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती है कि कोई इंसान कैसे चलता है, कैसे खड़ा होता है, या फिर कोई इंसान अपने हाथ कैसे हिला रहा है। सो थर्ड इज पोस्चर्स। पोस्चर्स है बैठने और उठने का तरीका, कि वो किस तरह से बैठा है, उसकी टांगे जुड़ी हुई हैं या खुली टांगे हैं, या हाथ टेबल पर है या हाथ उसके पॉकेट के अंदर है, या फिर उसने हाथ अपने दोनों बांध के रखे हुए हैं, या उसने खुले पीछे छोड़ रखे हैं या लटका के रखे हैं। सो दैट इज पोस्चर्स। उसकी कमर सीधी है या कमर झुकी हुई है, उसका सर झुका हुआ है या सर, गर्दन ऊंची है। सो दैट इज योर पोस्चर्स। हम थर्ड इसमें पोस्चर्स पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ इज आई कांटेक्ट। सो आई कांटेक्ट भी बहुत बड़ा
इसमें पार्ट है, देखो 7 मेजर टाइप्स में ना फेशियल एक्सप्रेशन सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी फेशियल एक्सप्रेशन है, बाकी सब छोटे हैं। एंड द फिफ्थ वन इज पैरा लैंग्वेज। किसी को मालूम है पैरा लैंग्वेज क्या होता है? देखो पैरा लैंग्वेज, पैरा का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, या अलग। तो पैरा लैंग्वेज कोई और सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, पैरा लैंग्वेज है आपकी बात करने का ढंग, आपकी टोन क्या है बात करने की, सार्केस्टिक है या हैप्पी है या लाउड है या सॉफ्ट है, ठीक है, आप आपका लहजा, बात करने का लहजा। सो पैरा लैंग्वेज इज द टोन दैट यू यूज व्हाइल स्पीकिंग समथिंग। और सिक्स्थ है प्रोक्सिमिक्स। सो प्रोक्सिमिक्स का आइडिया है किसी को? चलो मैं बताता हूँ, देखो प्रोक्सिमिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो सबको पता ना हमारे फोन में होता है। प्रॉक्सिमिटी स्पेस से रिलेटेड है, सो प्रॉक्सिमिक्स भी स्पेस से रिलेटेड है कि एक इंसान अपना पर्सनल स्पेस किस तरह से यूज करता है और कितना उसको एक्सपैंड करता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि एक इंसान का जो आगे पीछे का घेरा होता है वो मिनिमम उसका 1.5 मीटर का होता है। सो एक अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं किसी के कितना करीब जाकर खड़ा हूँगा या मैं कितना कंफर्टेबल फील करूंगा जब कोई और मेरे बिल्कुल करीब आए। या इसमें एक चीज और देखी जाती है कि मैं, जैसे मान लीजिए मैं एक दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा हूँ और एक बंदा मेरे करीब आ रहा है, वो मेरे पास आकर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो मैं किस लिमिट तक कंफर्टेबल फील करूंगा? क्या वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाए मैं तब भी कंफर्टेबल हूँ, या फिर वो 6 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा है तब भी मैं कंफर्टेबल हूँ? So that is proxemics. Proxemics is study of how uh, how to use you how you use your personal space is called proxemics. The study of how you use your personal space is called proxemics. And the last one is physiological changes. Physiological changes में हम पढ़ेंगे जैसे sweating होती है किसी को बात करते टाइम, किसी का चेहरा लाल हो जाता है, किसी को हिचकी आने लगती है, किसी को खांसी होने लगती है। सो दीज आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये कब आते हैं, क्यों आते हैं, इनसे क्या चीजें पहचानी जाती हैं, ये हम पढ़ेंगे। आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। किसी को पूछना कुछ? I have a doubt with continually. कंटिन्यूअली यार वो ना मैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, आज टाइम खत्म हो गया, ठीक है? Okay, okay. जस्ट या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर लो, मैं जो आपका क्वेश्चन है आई